Pastor Claudius, please pray. Yes, Bhaiya. Shalom. Shalom to everyone. Shalom. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful day that you blessed us, O Lord God. Throughout the day, we saw your hand of favor, Lord God, resting upon us. Even though, Lord God, there were times which were testing, O Lord, and we saw that you saw us through, Lord God. Lord, your word tells us in Deuteronomy chapter 28, O Lord, that all those who are diligent with your word and all those who obey your command, Lord, you would bless each and every one of us, O Lord God. Lord, create that love within us, O Lord God, that love for your word, to be diligent, O Lord, in our walk with you. Lord, help us, O Father God. Now the world is in so much of chaos, O Lord God, that we would not swerve to the right or to the left, O Lord God, but we keep our focus on you. And Lord, no matter what happens, O Lord God, that we will not change our course, O Father God, because this life belongs to you. We believe, O Lord God, that this life is yours and yours alone, O Lord God. Use us to the optimum, O Lord God, that, Lord Jesus, anyone who sees us may say this, O Lord God, it's no longer me who lives, but Christ who lives in me. Yes, O Lord God. This life belongs to you, O Father God. And each one gathered here today, Lord God, we pray, Father God, that each one of them, O Lord God, you would bless them, Lord God. Bless them, watch over their going out and they're coming in. Bless them when they rise, bless them when they sleep, O Lord God. Bless when they are working, O Lord God. And I believe, O Father God, that each one of them would bring in good fruit, O Lord God, in their flesh, in their ground, in their workplaces, O Lord God, and in the kingdom of God. Yes, O Lord God. Your word tells us, O Father, and encourages us, O Lord God, each day that all those who love you will obey your commands, and all those who obey your commands, you will bless them, O Lord God, that you will live with them and be with you, Lord God. Yes, O Lord, we surrender this time into your hands, Master, even as we pray for your servant, the Shekhar Bhaiya, Lord God, that you have kept him, O Lord God, with wisdom and all that the knowledge of the word, O Lord God. Help him grow each day and come closer and closer to you, Lord God. Even as we walk, O Father God, we believe, Lord God, that you have placed a saint in our midst, O Lord God. Even as we look up to him, O Lord Jesus, we pray for his good health, O Lord God. We pray for all wisdom, O Father God, upon him. And Lord Jesus, that all that you have shared with him, O Lord God, that each day he would share with us, O Lord God, and we too would grow, Lord Jesus, looking at him, O Lord God, looking at his life, O Father God, that we would too grow, Lord God. We see your favor each day. We thank you for this amazing man of yours, O Lord God, and we bless each and every one gathered, O Lord God, who come, Lord God, even as the moment it is announced, O Lord God, that there would be a study. Help each one, O Lord God. They will not just be hearers of the word. Each one would be doers of the word, O Lord God. We thank you once again for this gathering, Lord God. Thank you for Shekhar Bhaiya, Lord God, and his family. Lord Jesus, we surrender this time into your hands. Master, let your will be done. We make this prayer in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. 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 Thank you, Pastor, Thank you, for Bhaiya. your God precious bless you. prayer. God bless you, Bhaiya. कल हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त किया था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के लास्ट लाइनों में उसने कुछ बातों को मेंशन किया और उसको हमने अच्छे से अध्ययन किया। तारे किसको बोलता है, वो कलीसिया के दूत किसको बोलता है, लैम्प स्टैंड एंड ऑयल, सब बातों को हमने देखा। यदि आज वे लोग जो कल नहीं आए थे, यदि आप आज ज्वाइन किए हैं तो मेरे YouTube चैनल में आप चले जाएंगे या किसी अपने कलीग से, जितने भी आपको नंबर ये लिंक भेजा है उनसे कनेक्ट कीजिए और पूछिए कि कल का वीडियो कैसे देख सकते हैं हम। तो उससे आपको सहायता होगी। 1 अध्याय को 2 पीरियड में हमने अध्ययन किया और आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस बात को याद रखेंगे कि हमने कल ध्यान किया था कि दीवट कलीसिया को बोलता है, दिया परमेश्वर का वचन है और तेल परमेश्वर का आत्मा है। अब बहुत ध्यान से देखिए आप कि एंड टाइम में जब 10 कुंवारियों के विषय में हमने कल ध्यान किया तो दीवट नहीं है, केवल मसाल है, दिया है और तेल की बात कहा उसने।
फाइनली अभी आज के डेट में सोने की दीवट के विषय में हमने कल ध्यान किया था कि फाइनली हम लोग 2 अध्याय के अंत में भी उस पर देखेंगे कि सोने की दीवट शब्द क्यों यूज किया उसने। और अभी एक से एक दीवट है, एक से एक कलीसियाएं हैं, पर उसमें दिया या परमेश्वर का वचन दिखता नहीं है। और तेल, जब दिया ही नहीं है तो तेल कहाँ से होगा। और इसलिए इन सब विषयों के साथ इन बातों को ठीक ठीक ध्यान करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 अध्याय पढ़िए एक बार फिर से, दीपा पढ़ो। The things which are concerning the church until the rapture, chapter 2 to chapter 3, 22. 7 ये dispensations of 2 the church. चैप्टर जो हैं, जो हम देखने जा रहे हैं, ये कलीसिया का इतिहास है। इसको बोलते हैं 7 dispensations of the church as a written message। परमेश्वर ने लिखित में इतिहास को बताया और ये इतिहास को समझने का मौका हमको मिला है, इसलिए पूरा ध्यान करेंगे। तो कैसे कलीसिया का आरंभ हुआ और आज तक अप टू रैप्चर, जब तक रैप्चर ना हो जाए, इस पृथ्वी पर कलीसिया का इतिहास क्या क्या इसके साथ होने वाला है, पहले से उसने बता दिया था यूहन्ना के थ्रू। उन्हीं बातों को हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे, पढ़िए इफिसियंस चैप्टर 1 9 and 10। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। और मैं आपको याद दिला दूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैंने बोला था कि रेवलेशन को कम से कम एक बार आप पढ़ लेना इस पूरे 1 महीने में। जिन्होंने पढ़ा उसको या उनको याद होगा कि 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। ये पौलुस ने पहले ही बता दिया था कि जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, उन सब को मसीह में वो एकत्र करने वाला है, एक जगह इकट्ठा करेगा। परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में आने वाला है। जो नई सृष्टि और नया आकाश और उसके वहां तक के पहुंचने के लिए समयों का प्रबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पेंसेशनल ट्रुथ ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हर बात का उसने प्लान किया हुआ है, ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है। जैसे इजरायलियों के विषय में हमने दानियल की पुस्तक में देखा कि कैसे 70 सप्ताह की बात कहा उसने, और वेल प्लान था वो, कैसे किसके बाद क्या होगा, किसके बाद। और ये वर्ड हिस्ट्री में मेंशन्ड है, ये कोई मिथ नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बाइबल नाम की किताब जो है हिस्टोरिकल बुक है। कहीं से भी आप किसी भी राजा, किसी भी नाम के पीछे चले जाओगे तो उसका पीछे हिस्ट्री मिलेगा आपको गूगल में। सो read it in English also. Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. और इसीलिए चूंकि उसने अपने भीतर अपने मन में ठान लिया था, यीशु ने भी कई बार चेलों को बोला कि, खासकर मरकुस 13 अध्याय में, बाद में पढ़ लेना आप, मैं बार बार मेंशन करता हूं कि उसके आने के विषय में ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, पर केवल पिता जानता है बोला, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया था। एवं यीशु को भी उसका समय नहीं बताया, और वो बता सकता था, ऐसा नहीं कि उसको कुछ मालूम नहीं, पर उसने कहा कि अभी तुम सह नहीं सकते, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा
तो तुमको सब बातें समझाएगा, सिखाएगा, बताएगा, आने वाली बातें भी बताएगा। और वो एक्शन में है, वो ही सिखा रहा है। ये मैं नहीं हूं, या इन विषयों में कोई भी शिक्षक है तो वो व्यक्ति विशेष नहीं है। दिस इज द विल ऑफ गॉड की परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये सब बातें कलीसिया को बताई जाए, और इसलिए हम लोग इन बातों पर ध्यान कर रहे हैं। सो मरकुस 13, ये जो मैं लाइन बोल रहा था ये इधर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में टाइम, सारे सिचुएशन, इवेंट्स बताए, पर टाइम नहीं बताया। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमको कंफर्म होना चाहिए? ये बोल रहा है कि केवल पिता जानता है, उसका प्लानिंग है, और उसकी बातों को यीशु ने यहाँ पर और एक लाइन बोला था, पढ़ो जरा, मरकुस 13:35। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मूर्ख के बांग देने के समय, या भोर को। अब आप ही ध्यान करो कि सांझ से लेकर भोर तक, इसको दिन बोलेंगे या रात बोलेंगे? What is in English? Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming, in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning. और ये जो इवनिंग, मिडनाइट, कॉक क्रोइंग आवर और मॉर्निंग, इसी का एक्सप्लेनेशन है ये डिस्पेंसेशनल ट्रूथ ऑफ द चर्च, 2 अध्याय और 3 अध्याय। इसने बताया तो था कि वो आएगा तो कब? रात को आएगा। और उसके बारे में क्या बोला? ये तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को। ये चारों जो समय है ये दिन में नहीं होता है, रात में होता है। क्यों ये बात बोला उसने? यूहन्ना 9:4 और 5 पर पढ़िए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये बोलता था कि दिन ही दिन में काम करना है और रात आने वाली है। अब पौलुस ने क्या बोला? पढ़िए। दिन में मैं जब तक जगत की ज्योति हूँ, उसने मलाकी 4:2 में इस विषय में प्रोफेसी किया गया। लास्ट प्रोफेसी अबाउट दीपक, किसका माइक ऑन है? देखो, नए लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आपका माइक गलती से भी ऑन ना हो, लोगों का कंसंट्रेशन भंग होता है। प्लीज अपना माइक बंद करके रखें, केवल बाइबल पढ़ने वाले ही ऑन करते हैं। तो मलाकी 4:2 में यीशु के विषय में फाइनल प्रोफेसी जो की गई, क्या लिखा? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। और इसके बाद 400 साल बाद यीशु जब आया तो लोग चंगे होने लगे और आनंदित होने लगे। आनंद और शांति का सुसमाचार लेकर आया वो। इसलिए वो कहता था कि मैं जगत की ज्योति हूं। जब तक मैं जगत में हूं, जगत की ज्योति हूं। धर्म का सूर्य नाम है उसका। अब पौलुस क्या बोलता था? पढ़िए, रोमियो 13 अध्याय उसके 11 और 12। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है,
क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लें। इसको बाकी आगे पढ़ लेना, पर एक बात यहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा रात आने वाली, और पौलुस कहता था कि रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। उसको लगता था कि ये इतना सताव और इतना, क्योंकि एंड टाइम के विषय में उसने बहुत सारी बोला थिस्सलुनीकियों के पत्री में। तो वो जो सताव की स्थिति एडी 100 के भीतर जो हुई, उसको देखकर वो उसने ये लिखा कि दिन निकलने पर ही है, क्योंकि उसके आने के पहले भयानक स्थितियां होंगी जिसमें हम लोग आज चल रहे हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बीमारी क्या है जो, और अजीब अजीब बात हो रही है। आज ही अभी शाम को 6 बजे मुझे न्यूज मिला कि 1-1, 1.5 इंच के ओले गिरे हैं छत्तीसगढ़ में, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में, और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए होंगे जो रोड में या बाहर घर के रहे, और 20-25 मिनट तक लगातार ओले गिरे, बड़े बड़े ओले। ये सारे डेमोस्ट्रेशन है, सिम्टम है। लिखा है कि जब समय आएगा तो मन भर के ओले गिरेंगे। इन बातों को देखने जा रहे हैं हम। पढ़िए। यह सॉन्ग ऑफ मून ऑफ राइचसनेस, द नाइट, रात में चांद निकलता है। और चांद किसको बोला गया है? श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में ये लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 6 अध्याय उसके 10 में। ये चंद्रमा के साथ तुलना किया किसका? पढ़िए। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। ये उस स्त्री के विषय में लिखा है जिसका प्रेमी भेड़ चरा रहा है, और उस स्त्री को राजा ने अपने महल में कैद कर रखा। श्रेष्ठ गीत की किताब को अधिकांश लोग पढ़ते ही नहीं है, बहुत सबसे गंदी किताब बोलते हैं। जो मैं बोलता हूँ कि तुमको मालूम नहीं कि ये श्रेष्ठ गीत में कहानी क्या है। 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। एक राजा है, खोल के पढ़ो जरा श्रेष्ठ गीत की किताब, उसके 2, 3, 4 पढ़ लो। कौन सा अध्याय दादा? 1 अध्याय। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है, तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र ये के जो तुल्य है। प्रेमिका है उसके शब्द हैं, ध्यान से पढ़ना इस किताब को, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते ही नहीं, ये गंदी किताब है। अरे तुमको मालूम नहीं, पढ़िए। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। ये लिखा है, ये इसका कीवर्ड्स है इस किताब को पढ़ने का, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। राजा मुझको अपने महल में ले आया है। हमारे भारत देश में भी, हमारे भारत देश में भी एक कहानी है, कितना सही कितना झूठ मैं नहीं जानता, पर एक बात तय है, भारत देश में भी यही कहानी है कि एक पति एक राजा की पत्नी को एक दूसरा व्यक्ति उठा के ले गया, और चाहता था, उसने उसको छुआ नहीं, वो चाहता था अपने महल में कैद करके रखा था। सबको मालूम होगा, थोड़ा सा ध्यान करो। ये जो प्रेमिका है, इसका पति लिखा है कि वो बाहर भेड़ चरा रहा है, शेफर्ड है वो, गोपाल, जिसको गोपाल बोलते हैं, जिसको हमारे बाइबल के अनुसार अच्छा चरवाहा मैं हूं बोला उसने। वो चरवाहा है
और कलीसिया जो है इस संसार में, जो शैतान का महल है, इसमें कैद है। और शैतान चाहता है, वो राजा जो इस संसार का है, ये सब मैं बता चुका हूं इसलिए पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। ट्रायंगल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इस किताब की। अब पढ़ना ध्यान से, डायलॉग्स को नोट करना कि कब कौन बोल रहा है, राजा कब बोल रहा है, प्रेमी कब बोल रहा है, प्रेमिका कब बोल रही, तब तुमको इस किताब का स्वीटनेस समझ में आएगा। इट्स अ लव स्टोरी और ट्रायंगल फिगर है। शैतान है राजा और प्रेमी बाहर है, और राजा के महल में प्रेमिका कैद है, उठा के ले आया है, किडनैप्ड। हमारा राजा आने वाला है इस संसार से, इस संसार का जो राजा है उससे छुड़ाने के लिए। नहीं तो पढ़ लो एक लाइन, यूहन्ना 14:30 पढ़ो, क्या लिखा है। यीशु ने बताया, यूहन्ना 14:30 पढ़िए। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और ये मुझ हिंदी में उसका सरदार लिख दिया। एनीवन इज रीडिंग इन इंग्लिश? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? Hereafter I will not talk much with you, for the prince of the world cometh, and hath nothing in me. प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, ये यीशु बोल रहा था। किसके लिए? शैतान के लिए, कि उसने अपना मंगनी किया। और वो बोल रहा है पौलुस के शब्दों में, वी आर ओनली एंगेज, हमारी मंगनी हुई है उसके साथ, ब्याह नहीं हुआ है भैया अभी। ब्याह तो होने वाला है 19 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य। हम लोग अभी आगे जाएंगे तब देखेंगे। तो एंगेज जो है वो इधर पृथ्वी पर है, जहां शैतान का राज है, जिसके साथ परमेश्वर के बेटे का कोई मेल ही नहीं है, उसके कैद में है कलीसिया। बी केयरफुल। तुमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, अपने दूल्हे के हाथ में समर्पित कर रखा है, कि ये दूसरा जो है बीच का, वो एक बीच बीच में एक मूवी न्यूज में आते रहता है, यूट्यूब खोलोगे तो कभी कभी पुराने फिल्मों का ऐड आता है, पति पत्नी और वो। ये कुछ नहीं भैया, बाइबल में ये स्टोरी है। पति है कौन? वुड बी, होने वाला, अभी हुआ नहीं है। और पैराबोलिक लैंग्वेज है। एक बात, आज एक भेद की बात बता देता हूं, कुंवारी मरियम से यीशु क्यों पैदा हुआ, परमेश्वर का बेटा? तो कुंवारी मंगनी हुई स्त्री से उसको संतान चाहिए। रोमी 8:19 पढ़ो जरा। अभी शादी हुआ नहीं है यीशु का, मंगनी हुआ है कलीसिया से, शादी होने वाली है, पर उसके पहले उसको कलीसिया से क्या चाहिए? पढ़ो रोमी 8:19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात इकलौता पुत्र नहीं, अब वो बोलता है कि पुत्रों, एक पुत्र से काम नहीं चलेगा, अभी उसको और भी पुत्रियां चाहिए जो कलीसिया में शामिल होते हैं। उसका इंतजार है सृष्टि को, क्योंकि ये जब तक कलीसिया स्वतंत्र नहीं होगी तब तक यहाँ पर स्वतंत्रता आएगा नहीं, और ये सृष्टि का नवीनीकरण नहीं हो सकता। ये सब बात को याद रखना। तो चर्च इज द मून ऑफ राइचसनेस, जीसस इज द सन ऑफ राइचसनेस। और जीसस के जाने के बाद कलीसिया, सूर्य जब डूबता है, सूर्य सनसेट जब होता है, तब चंद्रमा का समय आता है। कलीसिया का समय यीशु के जाने के बाद आया, इसको याद रखना। पढ़िए।
7 parables as 7 ages of the church. Matthew 13. मत्ती 13 में 7 दृष्टांत है। दृष्टांत के लैंग्वेज में यीशु ने कहानी नहीं बताया। बहुत सारे लोग उसमें उपदेशबाजी कर लेते हैं, उनको मालूम नहीं कि वो दृष्टांत जो है वो 7 एजेस युग हैं कलीसिया के, कि पहला युग में क्या होगा, दूसरा युग में क्या होगा, तीसरा, एक एक करके देखेंगे। ये इफिसुस की कलीसिया और जो पहला पैराबल कैसे दृष्टांत है, इसको ध्यान करने जा रहे हैं। इसलिए पूरा कंसंट्रेट करना। आप थोड़ा भी ध्यान दाएं बाएं होगा आपका तो ये बातें आपको समझ में नहीं आने वाली। वैसे ये प्रकाशित पर्दे के पीछे की बातें हैं जिसको ओपन कर रहे हैं हम। परमेश्वर के आत्मा ने उन बातों को जो 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 कवर्ड थी, रेवलेशन का वर्ड मीनिंग बताया था मैंने पहले ही दिन, एक बार फिर से पलट के देख लेना, वीडियो इज अवेलेबल। 7 parables as 7 ages। फर्स्ट पैराबल पढ़ो भाई। Parable of seed sowing, church in Ephesus, AD 33 to एफेसुस का जो कलीसिया है उसको यदि ध्यान करोगे, ये मैं सुधार दूंगा। मत्ती 13:18 से 23 और रेवलेशन 2 है, वो 1 नहीं है, 2 का 1 से 7। 1 से 7 रेवलेशन पढ़ लीजिए। मत्ती 13 को बाद में पढ़ लेना, वहां बीज बोने वाले का दृष्टांत है और फाइनल रिजल्ट है वो दिखाया गया। रेवलेशन 1:1 to 7। नीतू पढ़ो। 2:1 to 7। दो का 1 से 7 दादा। हाँ, 1 से 7। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये आत्मा कलीसिया से नहीं, फिर से पढ़ना। कलीसियाओं से क्या कहता ऐसा है? भाई मात्रा बिंदु तुम पैर मत करना। जी, ओके, केयरफुली, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है जी, आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है, शेखरनंद नहीं कह रहा है। मैं केवल आपकी सहायता कर रहा हूं कि यहाँ क्या लिखा है। मत्ती 13 का 18 से 23 भी पढ़ लो, तब समझ में आएगा कि अर्ली चर्च एज का एक्चुअल ये हिस्ट्री है AD 33 टू AD 68। ये कलीसिया का इतिहास को मेंशन कर रहा है। पढ़िए। तो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर
तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। रिजल्ट बताया, रिजल्ट वाज विथ अ डिक्रीजिंग मैनर लाइक सन सेटिंग। शुरू में 100% रिजल्ट आया। जितने अच्छी भूमि वाले थे, वैसे बीज बोने वालों को एक बात बता दूं मैं, एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? कि आप जितना भी काम करते हैं उसमें 3/4 वेस्ट जाता है, 1/4 फ्रूटफुल हुआ। इसलिए कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए, काम करते जाओ। आपको मालूम नहीं है कि कौन सा अच्छी भूमि में जा रहा है और कौन सा पथरीली भूमि में जा रहा है, कौन सा कहाँ जा रहा है। ये लिखा है कि शुरू में 100% आया, फुल फ्लैश, फुल सन रेज, दिन का समय था। बाद में 60% हुआ, उसके बाद 30% हुआ। क्यों मालूम? ड्यू टू, पढ़ो भाई। Due to snatches, persecution, worries, etc. ये सब के कारण जो रिजल्ट था वो 68 आते आते कलीसिया को छुपना पड़ा। जिन लोग इकट्ठे होते थे, गांव गांव प्रचार करते घूमते थे, दो शत्रु पैदा हो गए। कलीसिया को सताने वाले 2 प्रकार के लोग थे। एक तो ओरिजिनल जो ज्यूज थे, ऑर्थोडॉक्स वो, और दूसरा रोमन गवर्नमेंट। दोनों मिलके इतना भयंकर सताते थे। अर्ली हिस्ट्री यदि आपको इंटरेस्ट है तो मैं एक मूवी आज लिख के भेज दूंगा ग्रुप में, उस मूवी को देख लेना, को वर्डिस करके। नीरो के समय क्या हुआ, 68 से लेके वो आगे देखेंगे, आगे नीरो के टाइम पे। और सुने होंगे आप लोग, वैसे इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय 35 पद से आगे लिखा हुआ है कि ये जो परसिक्यूशन शब्द आया है वो कहां तक और कितना भयंकर होता था, पढ़ लो एक बार। 11 का दादा? इब्रानी 11 का 35 से आगे। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और हमारे पहाड़ों यहाँ पर थोड़ा तोड़ फोड़ हो जाता है, किसी के चर्च में कोई कुछ मारपीट हो जाता है तो भयंकर बात हो जाती। इसको पढ़ लेना 10, 20, 30 बार कि उस समय में क्या हुआ, जिसके कारण ये इवनिंग आवर धीरे धीरे ओपन प्रीचिंग वर्क और ओपनली वर्शिप एंड प्रेजिंग एंड सब चीज बंद हो गया। अभी तो कोरोना ने बंद करा दिया, ले दे के 2-4 महीने खुलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। अभी बंद होने वाला, देखते जाओ, कई जगह बंद हो चुका। और मैं तो बता ही दिया हूं कल कि दिवट तो रहेगा नहीं। फाइनल जब आएगा, नो चर्च का कोई सिस्टम, तो चाहे करोड़ों रुपए का चर्च हो तुम्हारा, सोने का दिवट,
दीवट नाम की चीज बोला नहीं 25 अध्याय मत्ती में, कल हम लोग देखे थे। दिया जलते रहे, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और दिए जलते रहे बोला है। यीशु ने बोला कि तुम कमर बांध के रहो, तैयार। कमर बांधने का मतलब होता है बी रेडी टू मूव, टू डू समथिंग। और दिए जलते रहे, तुम्हारे अंदर वचन दिए के समान रोशनी फैलाते रहे, और तेल चाहिए उसके लिए। 10 कुमारियों का वर्णन कल हमने देखा। इट वॉज कॉल्ड द इवनिंग आवर, जिसको मरकुस में यीशु ने कहा सांझ को, सांझ होगी। फिर उसके बाद ये पढ़ लिया हमने ना। इनके बीच में बाहर तो भयंकर बातें थी, भीतर भी लफड़े थे। पौलुस लिखा है प्रेरितों के काम में, पढ़ लेना कि बाहर भयानक बातें थी और भीतर क्या था। देखो, शुरू में कैसा था। AD 33 to 170, पढ़ो जरा इंग्लिश में। सबसे पहले, अच्छा रुको, सबसे पहले कितने लोगों को बुलाया यीशु ने? 12। उसमें से एक जन बेची दिया उसको, रहे 11। वो 11 का भी हाल चाल ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। उसमें से केवल 3 जन काम किए, याकूब, योन्ना और पतरस। ध्यान से देखना, वो तो ये 12 में था ही नहीं पौलुस, वो बाद में आया। और तब पतरस ने प्रचार किया। ये लोग कुल मिला के पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोग थे, जिनको यीशु ने बोला था कि यहीं ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आया तो लिखा है 3000 लोग मिल गए एक साथ, एक झटके में 3000 लोग यीशु के पास आए, ग्रहण किए पतरस के प्रचार से। 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है प्रेरितों काम 5000 लोग मिल गए। उसके बाद गिनती बंद कर दिया, बढ़ते रहे। पर 6 अध्याय में पहुंचे तो क्या हुआ? 6 का 1 में क्या लिखा? उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। झगड़ा शुरू हो गया। ये भाषा का अर्थ समझाया था पिछली बार, अभी भी बता देता हूं। ये सारे, इनमें अन्य जाति अभी नहीं आया है, ये सारे यहूदी ही थे। पर कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे थे, मतलब जो पढ़ लिख जाते थे उन दिनों में। जैसे हमारे यहाँ जो पढ़ लिख जाते हैं उन लोग हिंदी और उसके साथ इंग्लिश भी बोलने लग जाते हैं। उन दिनों में यूनानी लैंग्वेज जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को आता था। नहीं तो बचपन से लोग बाई बर्थ इनकी ओरिजिनल मातृभाषा, यदि मैं बोलूं मदर टंग, तो यहूदियों की मातृभाषा मदर टंग हिब्रू था। तो इसमें 2 प्रकार के लोग थे, कुछ लोग हिब्रू बोलने वाले थे और कुछ लोग यूनानी भाषा जानते थे, तो ज्यादा पढ़ लिख गए थे। एकदम नीचे लास्ट लाइन येलो कलर में पढ़ो दीपा। That is Jews who had adopted the Greek language and culture. ये थोड़ा सा कल्चरल चेंज आ गया था। इनके बीच में थे तो ये यहूदी, अब इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। हमारे चर्चेज में अपने अपने जगह जहां भी हो, थोड़ा ध्यान करके देखना कि जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो जो कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, उनके साथ में तुम्हारा तंटा शुरू हो जाता है। ध्यान से देखना, ये शुरू हुआ प्रॉब्लम इन चैप्टर 6। इंटरनल प्रॉब्लम वाज बिगेन, ये हम लोग पढ़ लिए। ये था सांझ का समय। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ रहा है। सेकंड पैराबल,
Parable of false seed, politics, Church of Smyrna. ये फॉल्स सीड बोलने से क्या चीज घुसा? पॉलिटिक्स। चर्च के भीतर पॉलिटिक्स तब से घुसा पड़ा है। आज कौन सा ऐसा चर्च नहीं है जो मेन लाइन चर्चेज है जहां इसका राज नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट देयर, केवल राजनीति चलता है, राजनीति चलता है। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहता कि उसकी कुर्सी कोई दूसरा ले ले और गुंतारा करते रहता है, कुछ उसके लिए कहीं तक भी जा सकता है। वैसे ही हमारे अंदर के जितने जो ये क्या था, पढ़ो जरा, 1868 से शुरू हुआ ये और 82-84 तक चर्च का हिसाब किताब टोटल बिगाड़ के धर दिया इन लोगों ने। और कौन था वो, पढ़ो जरा, फ्रॉम नीरो टू डायक्लेशियन। ये रोमन एम्पायर थे। ये पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? निकोलइयों की शिक्षा, निकोलेटिन डॉक्ट्रिन। ये इसके बारे में क्या लिखा है? मत्ती 13 में उसके 25 पद में लिखा है कि जब लोग थोड़ा सताव के कारण थोड़ा मूवमेंट उनके बीच का कम हुआ, तब क्या लिखा है? जब लोग ढीले पड़े, तब जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बो के चला गया। आगे क्या 30 पद में क्या लिखा है? बोले अब बढ़ने दे, आखिरी दिन करूंगा मैं हिसाब। क्या लिखा? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य में 2 कटनी है, खेती और खेत की कटनी और जो दाख की बारी, दाख के गुच्छों की कटनी। ये आएगा, आगे देखेंगे। बोला अब कटनी तक बढ़ने दो, अभी पॉलिटिक्स का कोई उपाय मत करो, ये नहीं रोक सकते तुम, क्योंकि तुम हो सकता है कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन कुर्सी के लिए कुछ मेहनत कर रहा है और कौन ईमानदारी से सेवा कर रहा है। यू कांट जज। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2:6। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। ये निकुलइयों की शिक्षा में क्या था मालूम है? impure doctrine was taught such as Community wives and fornications. व्यभिचार परमिसेबल है, कई पत्नियों का पति होना कोई बुरी बात नहीं, ये सिखा दिया निकुलाई। क्या लिखा 1 कुरिन्थी 5:1 में? यहाँ तक सुनने में आता है, ये निकोलाउस की शिक्षा के कारण हुआ था। पढ़ो जरा, क्या लिखा? यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। कई लोगों को गले नहीं उतरता, ये मेरे गले उतरे ही नहीं। कलीसिया में इज इट पॉसिबल? तो भाई यहाँ तो लिखित में पौलुस लिख दिया। वो भी ये पौलुस ने नहीं देखा था। कुरिन्थ की दोनों पत्रियां 7 का 1 पद को जस्ट शुरू करो जरा नीतू। 1 कुरिन्थी 7 का 1। तुमको समझाना चाहता हूं कि ये पत्रियों के विषय में भी सावधान रहना। इफिसुस की कलीसिया को पहला क्यों बोला, उसका भी कारण बताता हूं। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु
व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की रुको, फिर से शुरू करो। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह बस। अच्छा है। इन्होंने जो समस्या फेस कर रहे थे अपने चर्च के भीतर, उसको लिख के चिट्ठी में भेजा था कि दीज आर द प्रॉब्लम इन आवर इनसाइड, उसका आंसर कर रहा था। इसलिए कुरिन्थ की पत्री के A to Z सब चीजों को एज इट इज आंख बंद करके लागू मत कर लेना। बिगड़ैल चर्च थी, बिगड़ैल कलीसिया भी है, बिगड़ैल कलीसिया भी होती है। वॉच योर चर्च कि ऐसा कलीसिया जिसमें भयंकर, अच्छा आनंद भाषा के विषय में कहाँ लिखा है भाई? इफिसुस में है, फिलिपियों में है, कुलुस्सियों में है, कहीं नहीं मिलेगा, केवल कुरिन्थ में मिलेगा। जहां जितना ज्यादा तामझाम होता है वहां उतना ही ज्यादा लफड़े होते हैं। बी केयरफुल। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल को ध्यान से पढ़ो, सब दिखाई देगा। यहां तक सुनने में आता है, मैं तो देखा हूं आंख से, और सुनना तो बात की बात है। मुझको प्रभु ने भारत देश में घुमा घुमा कर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मैं गया नहीं, केवल नॉर्थ ईस्ट बचा है। दुआ करिए कि अप्रैल मई मेरा ये ट्रिप एक बना के रखा हूं मैं, 3 साल हो गया, बट ड्यू टू ये कोरोना मेरा मूवमेंट बंद हो गया है। एक बार मुझे तब मेरा देश का जो विजन है वो पूरा हो जाए, वहां जाने का है, उन लोगों से जो उस क्षेत्र में है और मसीह में रहकर कुछ करना चाहते हैं। अब तो वैसे समय कमी है, पता नहीं मौका आएगा भी कि नहीं। प्रभु खुद अपना काम करना जानता है, मुझसे नहीं होगा तो और किसी के द्वारा करे। पर मैं बताना चाहता हूं ये सब बात, इसलिए आप ध्यान दो, ध्यान से। अब समय नहीं है कि किसी और को देखो। तेजस्वी कलीसिया का रूप आपके भीतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ो, ये मैं बोल दिया पर लिखित में है, पढ़ लो। 2 कुरिन्थियों 7:5। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। इससे भयंकर क्या होगा? ध्यान से पढ़ोगे तो हर अध्याय में नया नया प्रॉब्लम दिखाई देगा। एक कुरिन्थ की पत्री, कहीं पर मुकदमे हैं, तुम एक दूसरे पर मुकदमे कर रहे हो, चर्चेज में मुकदमे भी चल रहे हैं, कोर्ट केस। कहीं पर ये व्यभिचार है, ये भयंकर बातें हैं भीतर। बाहर लड़ाई थी, बाहर रोमी और यहूदी लोग सताते थे, और भीतर में ये सब चल रहा था। What is in your divat lampstand, जिसमें हो तुम? What about that? लिखित में है भाई ये। मैं कभी किसी पर दोष नहीं लगाता, पर बताना मेरा जिम्मा है। प्रभु ने मुझे बताया कि बेटा, कलीसिया शब्द का मतलब, इफिसुस की कलीसिया को पौलुस ने लिखा, क्या लिखा? एक का एक पढ़ो जरा, क्या एड्रेस करता था? कौन सा दादा? इफिसुस 1:1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। तो इफिसुस के बारे में एक अध्याय पढ़ लेना, और फिलिप्पी एक अध्याय भी पढ़ लेना, और कुलुस्सी एक अध्याय भी पढ़ लेना। कुलुस्सियों की पत्री मसीह के बारे में, हेड,
एक नया आदम जिसको बोलते हैं, समय आएगा तो बता दूंगा। न्यू पौलुस ने बोला कुरिन्थ 15 में अंतिम आदम। अंतिम आदम, कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह अंतिम आदम, झूठ बात, तुमको मालूम नहीं ठीक से। ही इज लास्ट आदम का हेड है, वो सिर है। और सिर के विषय में डिटेल कुलुस्सियों की पत्र लिखा है कि मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता है, फुलनेस ऑफ गॉड इज मसाया। और एक अध्याय इफिसुस में लिखा है द चर्च इज द फुलनेस ऑफ मसाया। मसाया इज द फुलनेस ऑफ गॉड एंड चर्च इज द फुलनेस ऑफ मसाया। मसीह की परिपूर्णता कलीसिया। इन सब बातों को खोजो, ढूंढो, समझो। और फिलिपियों की पत्री एक अध्याय में वहां एड्रेस किया है जितने जो लीडर्स हैं, व्यवस्थापकों और सेवकों समेत, ऐसा शुरू करता है। ये सब बातें मायने रखती हैं। इफिसुस नाम से शुरू क्यों किया? इफिसुस की पत्री कलीसिया का ब्लूप्रिंट है। कलीसिया कैसी होनी चाहिए? तो इफिसुस की पत्री जैसा होनी चाहिए। इसलिए प्रारंभ में इफिसुस का रूप था। कहां से कहां तक ये हमने देखा। पढ़ो जरा रेवलेशन 2 का 9 पद। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। ये जो पॉलिटिक्स था उसका क्लेरिफिकेशन कर रहा है। ये पॉलिटिक्स क्या था? पढ़ो। ये निकोलाउस की शिक्षा क्या है? पढ़िए जरा। Nicolaites were a sect in the church who wanted to establish a priestly order, probably trying to model the church after the Old Testament order of high priest, Levites, and common people. Nature of human beings. Circumcision. Galatians 4 8 to 10, Colossians 2 8 to 11, 21 to 23. ये सब पढ़ लेना आप, अभी इसको डिटेल नहीं करूंगा मैं। ये क्या कर रहे थे? जैसा यहूदियों में था, सबसे ऊपर होता था कौन? हाई प्रीस्ट। उसके बाद होता था प्रीस्ट, याजक। पहले महायाजक, फिर याजक, फिर लेवी, और उसके बाद कॉमन पीपल। ये सिस्टम को बोले ये हमारे परमेश्वर यहोवा का दिया हुआ नियम है। ज्यूज कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे चर्च के भीतर, और ये हो चुका, हो गया। कहां से कहां तक मैंने बताया। उतने दिन के भीतर चर्च के भीतर ये चीज घुस गया। कैसे? पढ़ो। Their objective was to establish an order of holy men and place them over the laity. पवित्र लोगों का एक ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आगे? Which was place them over the laity, which Yes. was foreign to the New Testament plan, and call them not नए नियम shepherds. का जो प्लानिंग था उसमें यीशु ने बताया था 23 अध्याय 32 में कि तुम पिता मत कहलाना। और आगे जाके देखेंगे कि पोप का सिस्टम डेवलप हो गया। फादर, रोमन कैथोलिक चर्च में जो फादर शब्द आया उसका कारण ये निकोलाउस की शिक्षा थी। क्या बोला? आगे पढ़ो। फिर And से call पढ़ो। them. Read it again. Their objective was to establish an order of holy men and place them over the laity, which was foreign to the New Testament plan, and call them not shepherds, but clergy, bishops, archbishops, cardinals, popes, etc. ये घुस गया। अब रोमन कैथोलिक चर्च में तो आया, आप देखेंगे उसको। अब प्रोटेस्टेंट लोग भी उससे अछूते नहीं है।
सबके पास बिशप है, सबके पास ग्रेड है, ग्रेडेशन कर, ये सीनियर, ये जूनियर, वो एल्डर बोलने से क्या था मालूम? पहला पत्रस 5 अध्याय का 1 पद से पढ़ो जरा। एल्डर बोलने से उसका कॉन्सेप्ट क्या था? एल्डर मतलब सीनियर जूनियर से मतलब नहीं था। अभी मेरा एक भाई बैठा हुआ है, प्राचीन। एल्डर का हिंदी में वर्ड होता है प्राचीन। प्राचीन का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं। पढ़ो भाई 5 अध्याय का 1 पद। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन। Those who are elders, they are responsible. जिम्मेदारी से मतलब है। क्या लिखा? तो प्राचीन क्या करता है? चंदा उठाता है। प्राचीन क्या करता है? तो कप उठाता है। प्राचीन क्या करता है? तो वो हेल्परी करता है। अरे भैया, क्या लिखा? तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। ये बोलता है। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए। अभी तो झगड़ा अधिकार का है। झुंड की अगुवाई करो, सहायता करो। अगुवाई करना बोलने से जहां डेस्टिनेशन क्या है हमारा, कहाँ जाना है, किसमें अगुवा चाहिए हमको, अगुवा के पीछे भाई बाइबल का कॉन्सेप्ट है चरवाहा और भेड़। चरवाहा आगे आगे और भेड़ पीछे पीछे। प्रभु सहायता करे, इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करे हर व्यक्ति। क्या क्या हो गया, क्या क्या घुस गया। अच्छा, ये निकोलाउस कौन था? निकोलाउस कौन था, जरा इसको तो ध्यान करें। तो निकोलाउस था कौन? उसके भीतर ये कैसे आया? ये भी खांटी एक यहूदी था और उसके अंदर वो यहूदी कॉन्सेप्ट था। और ये आया कहाँ से था? ये शब्द कहाँ आया है? वही 6 अध्याय में पढ़िए जरा निकाल के। निकोलाउस कौन था? जिसकी शिक्षा से पर यीशु ने लिख दे कि मैं घृणा करता हूं, और शुरू के लोग भी उसकी शिक्षा से घृणा करते थे। लिखित में है कि लोग उसकी शिक्षा से घृणा करते थे। जैसा तू घृणा करता है वैसा मैं भी करता हूं बोला। इन्हीं लाइनों के साथ 7वां अध्याय 7वां पद कंप्लीट होता है। कौन सी कलीसिया थी वो सब पहचानते थे कि इसमें अच्छा कौन है, बुरा कौन है। वहां से शुरू किया, दुख उठाते, थका नहीं तू बना हुआ है। इतना मार खाने के बाद भी उन्होंने यीशु को इनकार नहीं किया। ये सब चीज हम लोग देख लें शुरू 100%। पर धीरे धीरे सताव इतना ज्यादा हो गया कि भयंकर बातें होती। वो धीरे धीरे गिनती भी कम होना शुरू हुआ। लोग छिप के मिलना, खुलेआम प्रार्थना करने वाले को सीधा गर्दन काट दिया जाता था या सिंह के सामने फेंक देते थे। गुफाओं में छुप के मिलते थे बेचारे लोग। 6 अध्याय प्रेरितों का काम, उसका 1 से पढ़ो जरा। निकोलाउस कहाँ से आया? उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए
हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, ये प्रेरितों ने सलाह दिया कि अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकी वाला निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। और ये डुप्लीकेट यहूदी था, का मतलब बॉर्न यहूदी नहीं है, पर इसने यहूदी मत धारण किया था। खासकर जो कन्वर्टेड लोग होते हैं ना, जब लहू की छाप से इजरायली लोग बाहर निकले, कहां से निकले थे लोग? मिस्र देश, मिस्र में मूर्ति पूजक देश में गुलाम थे। वहां से परमेश्वर ने बड़े अद्भुत ढंग से 10 आश्चर्य करके निकाला और लाल समुद्र को 2 भाग करके बीच से पार कराया, जंगल में पहुंचे और तब मूसा को परमेश्वर ने ऊपर चढ़ जा करके पहाड़ पे बुलाया। जब वो ऊपर था तो 32 अध्याय को पढ़ना, उसमें समझ में आएगा, निर्गमन 32 अध्याय, कि ये जो इजरायली लोग थे ये बोले कि भाई वो मूसा कहाँ गया, 40 दिन हो गया दिखता नहीं है, हम उसको नहीं जानते। और उनको बोले बछड़ा बना। पुरानी चीजें साथ में रहती हैं। बोला वो जो अगुआ था वो तो दिख नहीं रहा है, अगुआ बेचारा परमेश्वर के साथ बिजी है। इन लोग बोले हम नहीं जानते उसको क्या हुआ, तो बछड़ा बना, और वो बछड़ा बनवाकर उसके सामने नाचने कूदने व आराधना करने लग गए। कौन थे? पुराने नियम के बुलाए हुए लोग। नए नियम के बुलाए हुए लोगों में अर्लियर ये इतिहास है कि कुछ लोग थे जिसमें एक जन यहूदी मत को धारण करके था, उसी ने नया सिस्टम, जो पद, प्रतिष्ठा, जगह, चेयरपर्सन, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, निकोलाउस की शिक्षा। और सारा क्या बोलते हैं, जितना व्यभिचार और क्या बोलते हैं, बहुपत्नी का सिद्धांत, ये सब चीज निकोलाउस ने घुसाया। यदि हिस्ट्री पढ़ोगे, खोजोगे तो सब मिल जाएगा। Who was निकोलाउस? So बाकी बातें कल करेंगे। आज का हमारा समय पूरा हुआ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कोशिश करिए कि इन सब बातों को रिवाइज करिए ठीक से। सांझ हम लोग देख रहे हैं, अभी मिडनाइट तक पहुंचे नहीं है, आगे देखेंगे। यीशु ने 4 भाग में डिवाइड किया चर्चेस को। सांझ, आधी रात, कॉक क्रोइंग, मूर्ख का बांग देने का समय, और उसके बाद भोर। भोर होगा का मतलब उजाला फैलने लगा, और जब सूर्योदय का समय हो गया। पौलुस बोलता था कि रात बहुत बीत गई है। अब उसके बोलने के बाद ये 2000 साल पार हो चुका। यीशु से एडी बोलने से मसीह के बाद एनो डोमिनी 2000 साल पार हो गया। उसमें 21 प्लस हो चुका है, 2021 अभी 22 में चल रहा है। वेरी डेंजरस, क्योंकि टाइम तो पहले ही हो गया। पर तुम्हारे विषय में एक बार पढ़ लेते हैं उसको, पहला दूसरा पत्रस 3 अध्याय, उसके 8, 9 और 10 पद को पढ़ के फिर प्रार्थना करें। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं,
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु वह दिन आएगा, आगे पढ़ लेना बाद में, पर वो नहीं चाहता कि ज्यादा लोग नाश हो जाए, इसलिए धीरज से वेट कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मन अपना उसकी ओर फिरा ले। ये किनको बोल रहा था? तो 1, 2, 3 हम लोग कल पढ़े थे कि एक समय आएगा, अंत के समय में लोग बोलेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। उसी को समझा रहा है कि वो अपने प्रतिज्ञा में देर नहीं करता है, आएगा, पर धीरज धरा हुआ है। हो सकता है कि आप भी उसमें शामिल हो जाए। अपना अपना जांच लो भाई, ये एकदम इंडिविजुअल मामला है। तो प्रभु सहायता करे, आज के दिन एक बार फिर से हम प्रार्थना के साथ आज की इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। एंड रोहित फ्रॉम पटना, आपकी प्रार्थना के साथ आज की सभा यहाँ समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जलाल 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 जलाल, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, लव यू जीसस, लव यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता, आज के सुंदर समय देने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज जो वचन हम सुने हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के वचनों के थ्रू आप हमसे बातें किए हैं पिता। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, पार्टिसिपेंट जो जूम माध्यम से आपने हमें जोड़ा है पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, सभी पर आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, बुद्धि विवेक ज्ञान सामर्थ्य से भर दीजिए पिता। दादा के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं पिता कि इन्हें और आत्मा से भरिए प्रभु जी, सामर्थ दीजिए, इनके घर परिवार पर भी चंगाई दीजिए कि जो वचन ये बोलते हैं प्रभु, वो वचन को हम सीखने वाले अपितु बोलने वाले भी बने पिता, किसी को सिखाने वाले भी बने पिता। आपके अनमोल वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पूरी आदर महिमा सिर्फ आपको देते हैं पिता। हर एक लोग पर बरकत कीजिए प्रभु, जो जुड़ रहे हैं पिता, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं ये जूम मीटिंग में पिता, उन्हें आप आशीष दीजिए प्रभु कि जहां कहीं भी है और आने वाले दिन में वो भी जुड़ के सीखने पाए पिता। आप जो सिखा रहे हैं प्रभु, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आप राजाओं के राजा, महान खुदा, जलाल खुदा है प्रभु। आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू भाई, आपको प्रभु आशीष